Hello everyone, myself Dr. Sagar Pushp and you are watching Doctor's Desk. So I hope you have liked the first part of this video and it helped you a lot. So in this video, in the next part of this video, we're going to discuss about the types of hospital in the army, working style in the army, and the salary and all the facilities you'll get if you're joining as a medical officer in the armed medical services. So let's start the video now. So before starting the video now, kindly share, subscribe and follow my channel. So let's start the video now. Hello everyone, so now we'll discuss the types of hospital in the army. If we'll see, the topmost hospital is the command hospital, and below that is the military hospital, and the final the field hospitals. So there are 6 command hospitals in all over India, 112 military hospitals, 12 Air Force hospitals and 10 naval hospitals in India. So if you are joining as a medical officer in Army Medical Services, you can get posting in the command hospital, military hospital, Air Force hospitals and the naval hospitals. So if you move further, there are total, I've told you there are 6 command hospitals in the Indian Army, 1 command hospital in the Indian Air Force, and 1 other command hospital, that is INHS Ashwini, which is in Mumbai in the Navy. So if you'll see, the topmost hospital of the army is the command hospital. There are 4 commands. You can see the Eastern Command, the command hospital Kolkata, Western Command, the command hospital Chandimir, and Southern Command, there will be command hospital Pune, Central Command, that is the command hospital Lucknow, and there is command hospital in Chandigarh also, and for the Northern Command there is a command hospital in Udhampur. These are the command hospitals of the Indian Army. If you'll see the Indian Air Force, there is a training command hospital at the Bengaluru, and the Indian Navy, the Western Command, that is the INHS Ashwini and Mumbai. So these are the command hospitals of the Army Medical Services. If you're joining as the Army Medical Services, you will get posting here. Apart from that, there are 112 military hospitals and 10 naval hospitals and some Air Force hospitals. So either I'll gonna share the link in the description, so you can go to that link and you'll get every details about where all hospitals are and about each hospital. So I hope all these things gonna help you. So if you move the working style in the Indian Army Medical Corps, so if you're joining as a if you're completed your MBBS and you're a fresh MBBS graduate and you're joining the medical corps as a senior short service commission or the permanent commission, mainly you will get posting in the difficult areas like Jammu Kashmir, Jaisalmer and all, and there you will get the field unit. You have a particular groups which you have to see if they have any difficulties or not, or so there will be field units, small field units. You'll get you will be in charge of that and you have to do the work. So it's very difficult. You can't stay with your family and your family members are not allowed with you. जब आपकी पोस्टिंग बहुत आउटर एरिया में हो जाती है तो वहाँ फैमिली मेम्बर्स को रहने के लिए स्पेस मतलब जगह नहीं है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके साथ अलाउ नहीं करते वहाँ रहने के लिए जब तक आपका पोस्टिंग मेनली मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल और कहीं कुछ ऐसे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ है फैमिली मेम्बर को रखने के लिए, तभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रख सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंगल रहना पड़ेगा। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के। मेनली आपको वहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे वो आपके आर्मी के जो ऑफिसर्स हो सकते हैं या आर्मी के जवान हो सकते हैं या अदर जो कुक्स एंड ऑल होते हैं, तो वो लोग उन लोगों को आपको देखना होगा। अगर कोई वहाँ फैमिली मेम्बर्स रहता है तो उनका भी ध्यान रखना होगा। ये सब काम है और मेनली आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर आप आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ज्वाइन करते हैं तो फर्स्टली व्हाट विल डू, आपको जैसे आपने नया ज्वाइन किया हुआ है तो आपसे वो पूछेंगे कि आप कहाँ वर्क करना चाहते हैं, तो मेनली लोग अपने घर के पास ही लेना चाहते हैं। तो यू हैव टू वर्क फॉर 6 months और 1 year एट दैट प्लेस एंड फिर आपकी फील्ड पोस्टिंग हो जाती है। मेनली 2 months का आपका ट्रेनिंग होता है जो कि ट्रेनिंग सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे आपकी 2 month की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वही जो 6 month to 1 year आपके घर के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी, उसके बाद 6 months और 1 year के बाद से आपकी पोस्टिंग जो है डिफिकल्ट एरियाज में फील्ड पोस्टिंग हो जाएगी। फिर वहाँ आपको 4 साल 5 साल ऐसे काम करने के बाद से यू विल गेट पोस्टिंग इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स और द कमांड हॉस्पिटल्स। तो जो फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मेनली MBBS ग्रेजुएट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, मेनली वो MBBS ग्रेजुएट्स ही होते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स इट विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स अवेलेबल। तो दिल बेसिक जो स्पेशलिस्ट होते हैं लाइक मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक एंड पीडियाट्रिक्स विल बी प्रेजेंट एट द मिलिट्री हॉस्पिटल्स, और जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं मेनली वो आपकी कमांड हॉस्पिटल्स में होते हैं।
एंड आई विल टॉक अबाउट जो जैसे कि आप लोग पूछेंगे कि एएफएमसी क्या है, फिर एएफएमसी और जो रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली है, दे आर द हॉस्पिटल्स। एएफएमसी इज ए मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में भी है। जो कमांड हॉस्पिटल जो पुणे में है, दैट इज अटैच टू द एएफएमसी। सो दीज आर द टू टीचिंग इंस्टीट्यूट। और अदर जो बाकी कमांड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी कहीं पे एमडी कोर्सेज चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, और कहीं पे डीएनबी चलते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सेम सिमिलर सैलरी है जो बाकी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज में मेडिकल ऑफिसर को मिलता है। इफ अकॉर्डिंग टू 7 CPC यू हैव टू ज्वाइन एज ए लेवल 10 ऑफिसर एंड बेसिक सैलरी विल बी 56,100। 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, अभी जो न्यू पेंशन स्कीम आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, लेकिन अभी भी आर्मी में ओल्ड पेंशन स्कीम ही चल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अलाउंस कुछ हार्ड फील्ड एरिया अलाउंसेस भी मिलते हैं। और एज कम्पेयर टू द बाकी मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनके सैलरी और जो आर्मी मेडिकल ऑफिसर्स के सैलरी में, ये मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, एमएसपी बोलते हैं, 15,500 पर मंथ। ये एक डिफरेंट होता है। प्लस आपको और बाकी जो कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है वो तो सबको पता ही है। So we'll talk about what all facilities you'll get. You'll get a type 4 quarter. You'll get all the facilities like canteen and अगर आप किसी हार्ड फील्ड एरिया में, जैसे कि आपकी कश्मीर में पोस्टिंग है या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है, you'll get एक आपका फ्लाइट का टिकट मिलेगा आने जाने का घर साल में एक बार, और आपको 2 AC सेकेंड टीयर के रेलवेज के टिकट फ्री मिलेंगे और आपके फैमिली के लिए। और उसके बाद से यू विल गेट 8 टिकट्स फॉर विच यू हैव टू पे जस्ट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट थ्रू द रेलवेज। सो एंड नॉर्मल जो आपको आर्मी की जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं लाइक कैंटीन एंड ऑल, वो सब मिलेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं गाड़ी मिलेगी क्या, नौकर मिलेंगे, ऑल द थिंग्स विल नॉट गेट हियर। मेनली जो फील्ड वर्क रहता है वो नॉर्मल, अगर आपको पोस्टिंग कहीं ऐसी होती है जहाँ आपको फील्ड वर्क के लिए जाना है, तो दे विल प्रोवाइड यू द कार एंड ऑल। सो मैक्सिमम कुछ चीज़ें मैंने ट्राई करी है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए आर्मी मेडिकल सर्विसेज के द्वारा। मैंने जो लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं उनसे डिस्कस किया और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जिससे कि आपको ये हेल्प हो पाए। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड it will gonna definitely gonna help you while choosing your career, and I'll trying my best to collect all the informations and all the opportunities for you that you can choose and move forward in your life. So hope you have liked this video. Thanks for watching, and don't forget to subscribe, share and follow my channel. Thank you and thanks for watching.